بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک 9 ربیع الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آیا ہے۔ سعودی عرب بھر کی تازہ ترین اوتھینٹک خبریں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات کریں گے عمرہ زائرین کی بات ہوگی، ٹکٹ کی ری شیڈولنگ کی بات کریں گے، نئے ویزا والوں کی بات کریں گے، سعودی ایئر لائن کے کرایوں کے بارے میں اور بھی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد الحرم میں اضافی زائرین کے استقبال کی تیاریاں۔ مسجد الحرم انتظامیہ نے کہا کہ زائرین کی اضافی تعداد کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ پیر تک مسجد الحرم کے زائرین کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے۔ واضح رہے کہ تمام سکولوں میں جو طویل ہفتہ وار چھٹیاں ہیں وہ جمعہ سے پیر تک ہیں، اور حرمین انتظامیہ کے تحت بھیڑ کو کنٹرول کرنے والی کمیٹی کے سربراہ اسامہ منصور الحجیلی نے کہا ہے کہ سکول چھٹیوں کے دنوں میں زائرین کی تعداد میں اضافے کے لیے مزید مسلح کھولے گئے ہیں۔ مطاف اور مسیح میں بھی اضافی ٹریک موجود ہیں، جبکہ صفائی کے عملے کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے زائرین کی خدمت کے لیے 500 کارکنوں کا اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ مسجد الحرم میں SOPs کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شورا کونسل کی میڈیا میں مزید سرمایہ کاری کی منظوری۔ سعودی شورا کونسل کا باقاعدہ اجلاس وہ آن لائن منعقد ہوا۔ شورا کے مشاورتی ادارے کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر مشعل بن فہم السلمی نے اجلاس کی صدارت کی۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق شورا کونسل نے سیشن کے افتتاح کے موقع پر اپنے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا جائزہ دیا۔ کونسل نے سعودی وزارت اطلاعات کے مطالبے پر میڈیا سیکٹر میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے فیصلوں کی منظوری دے دی۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی 900 خلاف ورزیاں۔ زکوٰۃ ٹیکس کسٹم اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے سعودی عرب کے مختلف ریجنز کی مارکیٹوں میں ٹیکس قوانین کی خلاف ورزیوں پر 900 چالان کیے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمے کی مشترکہ ٹیموں نے گزشتہ ایک ہفتے میں 8500 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے تاکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اتھارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں دکانوں، تجارتی مراکز، سپر سٹورز کے مالی ریکارڈز کا معائنہ بھی کیا۔ معائنے کے دوران تفتیشی ٹیموں نے مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جس میں دکانداروں کی جانب سے خریداری کی رسید کسٹمر کو نہ دینا اور تاکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بچا سکے۔ اس کے علاوہ رسیدوں پر ٹیکس کا سیریل نمبر نہ لکھنا اور سادہ رسیدوں پر وہ کسٹمر سے ٹیکس لے لینا لیکن پے نہ کرنا۔ اور اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے پرچون فروشوں، ہوٹلوں، مختلف نوعیت کی خدمات پیش کرنے والے ادارے اور کنسٹرکشن کے مالی ریکارڈز کے معائنے کے دوران بھی خلاف ورزیاں نوٹ کی ہیں۔ اگر کہیں بھی ٹیکس قانون کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس بارے میں آپ بھی فوری طور پر ادارے کی ویب سائٹ پر اطلاع دیں یا اسمارٹ فون پر موجود اپلیکیشن استعمال کرتے ہوئے آپ درست اتھارٹی کو اس سلسلے میں وہ اطلاع دے سکتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جدہ لاکھوں غیر معیاری لائٹیں اور بجلی کے سوئچ ضبط کر لیے گئے۔ وزارت تجارت کی ٹیموں نے بڑی تعداد میں جعلی لائٹس اور بجلی کے سوئچ ضبط کر کے گودام کو سیل کر دیا، جبکہ گودام کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جدہ کے ایک علاقے میں وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام کا معائنہ کیا جہاں بجلی کا سامان سٹور کیا گیا تھا۔ گودام میں لائی گئی لائٹوں کا معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ جعلی ہیں اور سعودی اسٹینڈرڈ سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ تفتیشی ٹیم نے گودام کو سیل کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ٹریفک حادثے کا سبب بننے والے 2 لوگ گرفتار، منشیات ضبط کر لی گئی۔ جازان پولیس نے منشیات فروش 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو گرفتاری سے پہلے ایک ایکسیڈنٹ کا باعث بنے جس میں ایک شخص زخمی ہوا، اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں اور عمر کی تیسری دہائی میں ہیں۔ نئے ویزے پر آنے والوں کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ معمولات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ مرحلہ وار پابندیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، جن میں سعودی عرب کے لیے سفر اور ویزوں کے اجراء کے حوالے سے پابندیاں بھی شامل ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف حوالوں سے سوالات بھیجے گئے ہیں۔ نصیر احمد نے سوال کیا ہے، جن لوگوں کے پاس نیا ویزا ہے ان کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो हालात हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक नहीं आए। इस हवाले से सऊदी वजारत सेहत की जानब से एहतियाती तदाबीर पर इख्तियार करते हुए समाजी फासले के असूलों पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है जिन लोगों का नया वीज़ा है वो क्या करें, इस हवाले से नए वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों के लिए भी लाजमी है कि वो कोरोना टेस्ट कराएंगे, जबकि एहतियाती तदाबीर पर इस तरह अमल किया जाएगा जो दूसरे मुसाफिरों के लिए लाजमी है। समीर अली ने इस सवाल किया है, उम्रा पर जाने के लिए कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट मुकर्रर है या अपनी गाड़ी पर भी जाया जा सकता है? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से सऊदी अरब में रहने वालों के लिए मरहला वार प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, जिसका पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद दूसरा मरहला, फिर तीसरा मरहला, अब 1 लाख तक की जो है वो तादाद कर दी गई है और बैरून मुल्क से भी जो है मोतमरीन है उनको लाया जा रहा है। वज़ारत हज और उम्रा की एप्लीकेशन है तमन्ना के ज़रिए सऊदी अरब में रहने वाले उम्रा पर जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए अंदरून मक्का मुकर्रमा मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई है, जिसके ज़रिए हरम शरीफ जाने और उम्रा की अदायगी के बाद मुकर्रर पॉइंट पर वापसी है। ट्रांसपोर्ट की यह सहूलत लाजमी नहीं है कि आप वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत लें, यह आपकी मर्ज़ी है कि आप वो लेना चाहते हैं या नहीं। आप किसी टैक्सी वगैरह से भी हरम मक्की जा सकते हैं। अलबत्ता दीगर शहरों से मक्का आने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत सबसे बेहतर ऑप्शन है, जिसके ज़रिए आराम से अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद वहाँ से मौजूद बस यानी कि ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए उम्रे के लिए डायरेक्ट हरम शरीफ पहुँच सकते हैं। इमरान महमूद ने सवाल किया है, विज़िट वीज़ा ओपन हो गया है या नहीं? कोरोना वायरस की वजह से पहले जो है वीज़ों पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब हालात मामूल पर आ गए हैं तो उसके मुताबिक पाबंदियां भी उठा दी गई हैं। दीगर वीज़ों की तरह विज़िट वीज़ों का इजरा भी शुरू कर दिया गया है। फैमिली विज़िट वीज़े के लिए जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वीज़े जारी किए जा रहे हैं। क्या ज़ेर समात मुकदमात में अजीर से इस्तिफ़ादा मुमकिन है? सऊदी अरब में आर्जी तौर पर काम करने के कानून को अजीर कहा जाता है और जो है आपको बताएंगे जो अजीर है इससे इस्तिफ़ादा करने का तरीक़ाकार क्या है। अजीर का निज़ाम वज़ारत मेहनत के ज़ैली इदारे जिसे मकतबुल अमल अरबी में कहते हैं यानी लेबर ऑफिस, उसकी जानब से तैयार किया गया है। इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि लेबर ऑफिस के दायरा इख्तियार में आने वाले कारकुन ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कानून घरेलू मुलाजमीन के लिए नहीं, घरेलू मुलाजमीन बराह रास्त लेबर ऑफिस की ज़ेर निगरानी में नहीं आते। वो कंपनियां और इदारे जो सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत फराहम करते हैं जिनमें घरेलू मुलाजमीन भी शामिल हैं, उनका मामला मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात कारकुनों के अपने कफ़ील से इख्तलाफात हो जाते हैं जिनके हल के लिए लेबर कोर्ट मौजूद हैं। कुछ वाक़यात में देखा गया है कि लेबर कोर्ट्स में मुकदमात काफ़ी लंबे अरसे तक ज़ेर समात रहते हैं। ऐसे में कारकुनों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुकदमे की पैरवी के दौरान कहीं मुलाजमत नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कारकुनों के इन मसाइल को देखते हुए वज़ारत मेहनत ने सऊदी अरब में काम करने वाले ऐसे गैर मुल्की कारकुनों के लिए अजीर कार्ड की सहूलत फराहम की है ताकि सऊदी अरब में रहते हुए उन्हें माली मुश्किलात का सामना ना हो। जिन कारकुनों के अपने कफीलों से झगड़े होने पर उनके मुकदमा लेबर कोर्ट्स में जो है वो ज़ेर समात हो, उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाती है कि वो अपने क़याम के दौरान किसी दूसरी जगह मुआवजे पर आर्जी तौर पर काम करने के लिए अजीर कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। कानून के मुताबिक लेबर ऑफिस के मुतल्लिका इदारे में इस बात का सबूत देना लाजमी है कि मुतासरा कारकुन का मुकदमा लेबर कोर्ट में ज़ेर समात है। लेबर ऑफिस में सबूत फराहम करने के बाद कानूनी तौर पर कोई भी कारकुन अजीर कार्ड हासिल कर सकता है और आर्जी तौर पर दूसरी जगह काम कर सकता है। अंदरूनी मुमलिकत सऊदी एयरलाइन के किरायों में भी कमी की तजवीज़। सऊदी मजलिस शुरा के रुकन इंजीनियर इब्राहिम ने तजवीज़ पेश की है कि सऊदी अरब के अंदर जो है सऊदी एयरलाइन के किरायों में कमी की जाए। आजल न्यूज़ के मुताबिक मजलिस शुरा का ऑनलाइन इजलास मुनक़द हुआ जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। सऊदी अरब के अंदर परवाज़ों के किराए में कमी के हवाले से रुकन शुरा की जानब से तजवीज़ पेश की गई है कि सऊदी एयरलाइन के किरायों पर नज़रसानी की जाए ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो मुसलसल अंदरून मुल्क मुख्तलिफ जो है अगराज़ के लिए सफ़र करते हैं। इसके अलावा तलबा को भी सहूलत होगी। तजवीज़ में मज़ीद कहा गया कि एयरलाइन की परवाज़ों के शेड्यूल पर भी गौर करने की ज़रूरत है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फ़्लाइट्स में तख़ीर ना हो। दूसरी तरफ एक अहम अपडेट देंगे, कोरोना के सबब सफ़र न करने वालों की टिकटों की रीशेड्यूलिंग। सिविल एविएशन ने सऊदी अरब में काम करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को हदायत की है कि वो कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुतासिर होने वाले मुसाफिरों के गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग करें।
सऊदी सिविल एविएशन ने गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग के लिए चंद नुकात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मुसाफरों को सहूलत फराहम करने के लिए हदायत की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनियां जो सऊदी अरब से मुसाफरों को सफरी खिदमात फराहम करती हैं उनके लिए 3 नुकात जारी किए हैं। अथॉरिटी की जानिब से जारी पहले नुक्ते में कहा गया, अगर मुसाफिर गैर इस्तेमाल शुदा टिकट वापस करना चाहते हैं तो उसे जो अदायगी की पॉलिसी के तहत उसकी सहूलत फराहम की जाए। दूसरे नुक्ते के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर को एक्सचेंज वाउचर्स जारी किए गए हों तो इस सूरत में मुसाफिर की ख्वाहिश के मुताबिक उसे बगैर इजाफी चार्जेस के रिफ़ंड या वाउचर की तजदीद की जाए। तीसरे और आखिरी नुक्ते में कहा गया, अगर मुसाफिर फ़्लाइट को रीशेड्यूल करना चाहता हो तो उसे उसकी सहूलत दी जाए, उसमें कोई इजाफी पैसे उससे ना लिए जाएँ। ताहम अगर मुसाफिर अपना रूट तब्दील करना चाहता है तो फ़ज़ाई कंपनी नए रूट के मुताबिक ही उसे किराया ले सकती है, इसके अलावा नहीं। जैसा कि आप जो है दिल्ली से जो है वो जद्दा आ रहे थे या लाहौर से जद्दा आ रहे थे, लेकिन आपने उसको अपना चेंज करके रियाद कर लिया या दूसरे कोई शहर कर लिया तो उसके मुताबिक आपको उसका किराया देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस टिकट अपनी दोबारा करवाने में नहीं लगेंगे। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। सऊदी अरब के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स जो सऊदी अरब की इकॉनमी को बदल कर रख देंगे। सऊदी अरब में 6 बड़े और तारीखी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसका मकसद मईशत को तब्दील करना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये प्रोजेक्ट दुनिया के और तमाम सऊदी शहरियों को मुल्क की जोग्राफियाई दौलत, मेहमान नवाजी और जो है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिशात दिखा रहे हैं। और उनका कहना था कि सऊदी अरब में और मईशत में अखराजात बढ़ाने के लिए इन मनसूबों को पहले से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है, जिसको सऊदी गीगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसमें न्योम रेड सी प्रोजेक्ट और किदिया प्रोजेक्ट, अमाला प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिसको एक बेहतरीन शक्ल में जो है वो सामने लेकर आया जाएगा और इकानमी इससे मज़ीद बूम करेगी। गोदाम में यमनी फ़ौज और अस्करी इदारों की वर्दियाँ और बैजेस ज़ब्त कर लिए गए। रियाद पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा जहां यमनी फ़ौज और दीगर अस्करी इदारों की वर्दियां और बैजेस ज़ब्त हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गोदाम में 10,000 से ज़्यादा वर्दियां और बैजेस पकड़े गए हैं। कोरोना से 2 हलाकतें, 46 नए केसेस की तस्दीक। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में कोरोना वायरस के मज़ीद 46 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही दिन में इस मुहलक मर्ज से 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जो सऊदी अरब भर में अब तक कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 5,47,807 तक पहुँच चुकी है। सऊदी अरब के तमाम रीजन में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 49 अफराद सेहतयाब होने के बाद इस मर्ज से अब तक 5,36,817 अफराद शफायाब हो चुके हैं। जाली स्पेयर पार्ट्स का कारोबार, 3 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह कैद। सऊदी अरब में सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार के इंसदाद के लिए कानून के दायरे में लाने के लिए 16 फरवरी 2022 तक की मोहलत दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत तजारत ने दमाम में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के गैर कानूनी कारोबार पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया जो गाड़ियों के जाली पुर्जे भी सेल कर रहे थे। सऊदी शहरी और इस कारोबार के हवाले से शामी शहरी को सहूलत फराहम किए हुए था, जबकि कारोबार का असल मालिक शामी शहरी था। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।